Hello students, good morning all of you. How are you all? I hope you all are safe and healthy. Okay students, let's start today class. I am teaching you the unit 3 and today I am going to start the session 4. Basic computer operation window OS. OS for students. OS means what? Here Windows OS means Windows operating system. In previous class you had already learned about the operating system. Students, first move on the learning objectives, means what you will able to learn. Working with mouse and keyboard. And the next one is working with MS Windows OS operating system. Next one, opening a file or folder, and the next one, renaming a file or folder and moving a file or folder. The last one, deleting a file or folder. Let's start with an introduction of the chapter. Students, first here I am going to define the OS. An operating system is an interface between a computer user and computer hardware. An operating system is a software which performs all the basic tasks like file management, memory management, process management, handling input and output, and controlling peripheral devices such as disk drive and printers. Students, now I am giving you one example related to this. जब भी हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी कंपनी में काम करते हैं तो हर एक कंपनी का एक मैनेजर होता है ना. हर एक जगह पे जहाँ भी जाएंगे तो आपको एक मैनेजर शब्द सुनने को मिलेगा. व्हाट इज़ द वर्क ऑफ मैनेजर? यस, वो मैनेज करता है. तो यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम भी है जो वो क्या करता है, मैनेज करता है कंप्यूटर के प्रोग्राम को. इट मीन्स एन ऑपरेटिंग सिस्टम एक इंटरफेस का काम करता है बिटवीन अ कंप्यूटर यूज़र, यानी जो कंप्यूटर को यूज़ कर रहा है, एंड द कंप्यूटर हार्डवेयर. हार्डवेयर ऑलरेडी मैंने डिफाइन किया था ना. द डिवाइसेस विच यू कैन टच एंड सी, दैट इज कॉल्ड द हार्डवेयर, फिजिकल पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर. तो हार्डवेयर का कुछ एग्जांपल्स भी मैंने दिया था, लाइक कीबोर्ड, माउस, डेस्कटॉप. दिस ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ हार्डवेयर. नाउ मेक इट मोर क्लियर. एंड ऑपरेटिंग सिस्टम इज सिस्टम सॉफ्टवेयर. सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम? देन यू हैव टू रिप्लाई फर्स्ट, इट इज़ अ सॉफ्टवेयर. An operating system is a system software that manages computer hardware, software resources, and provides common services for computer programs. Now students, you have already read the operating system. Okay, now come to the point. Operating system has two parts, which one, kernel and shell. Look at this picture carefully. Kernel, hardware, scheduler, memory, and shell, and the
application. The cell and kernel comes in an application. Do you know students, the kernel is responsible for interacting with hardware. इस पिक्चर के थ्रू मैंने शो भी किया है. कर्नल किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? वो इंटरेक्ट करता है किसके साथ? हार्डवेयर के साथ. ओके, एंड द सेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटरएक्टिंग विद द यूज़र. जैसे कि अभी मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम के डेफिनेशन में आपको बताया कि एक इंटरफेस का काम करता है बिटवीन यूज़र और हार्डवेयर. तो बिटवीन यूज़र एंड हार्डवेयर में हार्डवेयर का जो है वो पार्ट है वो कौन देखता है? हार्डवेयर जो है उसके साथ इंटरेक्टिंग कर्नल करता है और जो है यूज़र के साथ इंटरेक्टिंग सेल करता है. द सेल एक्ट्स एज द कमांड इंटरप्रेटर विच टेक्स द कमांड from the user, interprets them and take action accordingly. Okay, now here are some verses between kernel and cell. Let's more clear on these two parts of operating system. A computer program which acts as the core of the computer's operating system and has the control over everything in the system. It comes in kernel, but in cell a computer program which works as the interface to access the services provided by the operating system. कर्नल में वो ऑल ओवर जितना भी सिस्टम में है वो सारे को कंट्रोल करता है. बट इन सेल में क्या करता है? वो एसेस करता है सर्विस प्रोवाइडेड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू, जो सर्विस उसको प्रोवाइड किया जाता है. इन कर्नल कोर ऑफ द सिस्टम दैट कंट्रोल ऑल द टास्क ऑफ द सिस्टम इंटरफेस बिटवीन द कर्नल एंड यूज़र. तो सेल क्या है? कर्नल और यूज़र. कर्नल तो हार्डवेयर को कंट्रोल कर रहा है और यूज़र जो है ये दोनों के बीच का इंटरफेस कौन करता है? सेल. इन कर्नल डज नॉट हैव टाइप्स. कर्नल का यहाँ पर कोई भी टाइप्स नहीं है, बट इन सेल हैज़ टाइप्स सच एज बॉर्न सेल, सी सेल, कॉर्न सेल, born again cell, etc. Many types are there. Okay, come to the next point. GUI. GUI stand for graphical user interface. Students, a GUI, graphical user interface, is a system of interactive visual components of computer software. A GUI display objects that convey information and represent actions that can be taken by the user. The objects change colors, size or visibility when the user interacts with them. Means GUI, graphical user interface based operating system, have cell that offer graphical elements for interaction. Or we can say that GUI object include what? Icons, cursors and buttons. These graphical elements are sometimes enhanced with sounds or visual effects like transparency and drop shadow. पहले तो आप इसके नाम को ही पढ़ लीजिए. ग्राफिकल, ग्राफिकल तो आप लोग पढ़ते हैं. यूज़र इंटरफेस. I make you more clear on this. GUI, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, एक तरह का यूज़र इंटरफेस है. मीन्स जो कि यूज़र को कंप्यूटर डिवाइसेस, जो भी कंप्यूटर डिवाइसेस उपकरण है की मदद से विजुअल इंडिकेटर और ग्राफिकल आइकन को दिखने का ये वर्क करता है. डू यू नो स्टूडेंट्स, बड़े बड़े ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे कि विंडोज़, मैक, iOS, etc.
सभी में ग्राफिकल इंटरफेस होता है, जिसमें आप किसी भी आइकन पर क्लिक करके उस ऐप या जो भी चीज़ है उसे चला सकते हैं। इन द स्टार्टर, शुरुआत में GUI को माउस और कीबोर्ड की मदद से चलाया जाता था, विद द हेल्प ऑफ माउस एंड कीबोर्ड। बट नाउअडेज यह काफ़ी मोबाइल डिवाइसेस में चलते हैं, जैसे स्मार्टफोन, टैबलेट एक्सेट्रा। पर इसमें हम लोग कीबोर्ड और माउस के डिटेल्स के बारे में पढ़ेंगे। अभी जैसे मैंने आपको बताया है कि ये बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम में, सभी में ग्राफिकल, बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम में ग्राफिकल इंटरफेस करता है, उसे चलाता है। तो इसमें एक है हमारा विंडोज़ 7। तो इस चैप्टर में हम डिटेल्स में विंडोज़ 7 के बारे में जानेंगे। इंट्रोड्यूसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, विच ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज़। इन विंडोज़ 7 operating system. Windows 7 is an operating system that was produced by Microsoft and released as part of the Windows NT family of operating systems. सबसे पहले विंडोज़ NT, विंडोज़ XP आया, और भी बहुत सारे विंडोज़ आए 7, इसके बाद अभी 8 है, फिर अभी लेटेस्ट में 10 चल रहे हैं। It was released to manufacturing on when 22nd of July in 2009 and became generally available on October 22. ये रिलीज कब हुआ था? 22nd of July in 2009 and in the same year ये अवेलेबल हो गए, ये आ गया in which month? October. Yes, it is the successor of Windows Vista. आपको तो पता ही है, जिस तरह से मोबाइल फ़ोन में भी न्यू वर्जन्स आते हैं, न्यू आते हैं, एक के बाद एक। तो इस तरह से हमारे कंप्यूटर में भी पहले विंडोज़ विस्टा थे, विंडो विस्टा के बाद उसका एक न्यू वर्जन आया जिसका नाम है विंडो 7, रिलीज 2 years प्रायर। विस्टा कब रिलीज हुआ था? विंडो 7 के रिलीज होने के 2 साल पहले। Student, if it is a GUI based operating system, Windows 7 जो किस तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम है? GUI based, graphical user interface based operating system है that adhere to the features of a good GUI. Multiple applications can be simultaneously run in different windows. Apart from this multitasking, that is simultaneously running multiple applications, a number of concepts and terms are available in Windows. Students, graphical user interface जो है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम, Windows 7 जो है एक graphical user interface ऑपरेटिंग सिस्टम है। Here has written that it is a good GUI. Good GUI means अच्छे, जैसे जितने भी अच्छे इसके विशेषता हैं, मतलब वो सारे विशेषताओं का ये पालन करता है। ये एक साथ, इसके खासियत ये है ना कि एक साथ इसमें कितने विंडो हम चला सकते हैं। जैसे कि हम वर्ड पे भी काम कर रहे हैं, एक्सेल पे भी काम कर रहे हैं, पावर पॉइंट पे भी कर रहे हैं, इम्प्रेस पे कर रहे हैं, तो ये सारे पे मल्टीटास्किंग की तरह ये है, ये मल्टीटास्क करता है। मीन्स एक साथ हम इसमें बहुत सारे एप्लीकेशंस चला सकते हैं, और इसमें बहुत सारे टर्म्स भी अवेलेबल हैं। तो ये सब हमारे बेनिफिट्स हैं विंडोज 7 के। स्टूडेंट, लेट्स स्टार्ट विथ सम बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ अ GUI विंडो। वर्किंग विथ माउस, वर्किंग ऑन विंडोज 7 फॉर थिंग्स लाइक क्रिएटिंग shortcuts, running, closing applications, setting date and time, working with file, folder, etc. तो इसमें हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे, माउस के साथ कैसे वर्क करते हैं, कीबोर्ड के साथ कैसे वर्क करते हैं विंडोज 7 में।
Move on working with mouse and keyboard. Student, the Windows operating system uses both mouse and keyboard as input devices. As a input devices के रूप में ये दोनों को यूज़ करता है, माउस और कीबोर्ड. Interaction with Windows or a Windows application is most efficient when options are chosen with a mouse and characters are entered via the keyboard. आपको पता है माउस और कीबोर्ड दोनों के थ्रू हम लोग भी वर्क करते हैं कंप्यूटर पे. ऑप्शन या कुछ भी चूज़ करने के लिए, क्लिक करने के लिए हम लोग माउस का यूज़ करते हैं, और कुछ भी इंटर करना हो, एनी टाइप्स ऑफ कैरेक्टर्स, एनीथिंग, तो हम लोग कौन से इनपुट डिवाइस का यूज़ करते हैं? कीबोर्ड का. Look at the picture, keyboard and mouse. Students, here I have inserted the picture of a parts of a mouse to make more clear about the parts of a mouse. Left button, right button, wheel, or we can say also scroll bar, which were not always available. सारे माउस में ये अवेलेबल नहीं होता है. And it is the body for palm rest. What is the actions of mouse? Today I will teach you this also. Action of mouse: click, double click, right click, point, drag. You all have so many confusion related to this. So in today's session I will make it more clear. Students, now come working with mouse. Now the first, point and click. क्लिक का मतलब तो सब लोग समझते हैं. क्लिक करते जब हम माउस के बटन को प्रेस करते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं? क्लिक कर रहे हैं. Click the left buttons to select an item. A selected item is highlighted in some way. Selection of an item does not result in the initiation of a process. स्टूडेंट, जब भी हम माउस के पॉइंटर से किसी भी आइकन्स या कुछ को भी, किसी भी टेक्स्ट को पॉइंट करते हैं या क्लिक करते हैं, तो पॉइंट या क्लिक करने के बाद तो वो अपना जो प्रोसेस है वो तो स्टार्ट नहीं कर देता है. इट्स ओनली सिलेक्शन कि हम उस पर जाकर वर्क करना अब स्टार्ट करेंगे, उसको सिलेक्ट करेंगे. एंड दिस वन इज़ द लेफ्ट माउस बटन. स्टूडेंट, क्लिक मीन्स अभी मैंने बताया प्रेस एंड रिलीज द लेफ्ट माउस बटन वंस. जब क्लिक का मतलब है जब हम एक बार माउस के बटन को, लेफ्ट माउस के बटन को क्लिक करते हैं, इट मीन्स इट इज़ कॉल्ड क्लिक, सिर्फ एक बार. नेक्स्ट इज पॉइंट एंड डबल क्लिक. द लेफ्ट माउस बटन टू चूज एन आइटम. When you choose an item, some kind of action occurs. It means यहाँ पता चल रहा है कि जब हम चूज़ करते हैं, फर्स्ट क्लिक में हम क्या किए, जब हम सिंगल क्लिक किए तो क्या हुआ, हम इंडिकेट किए कि हम उसके ऊपर कुछ वर्क करेंगे, लेकिन कोई भी इनिशिएटिव उससे नहीं होता है, सिर्फ वो हाईलाइट करता है, वो शो करता है. बट जब हम डबल क्लिक करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, जब हम डबल क्लिक करते हैं इट हम उस पर कुछ वर्क करने वाले हैं, कुछ एक्शन उसके ऊपर करने वाले हैं. डबल क्लिक मीन्स ये जो लेफ्ट बटन इसको कितनी टाइम्स क्लिक करना है? 2 टाइम्स. मीन्स क्विकली प्रेस द एंड रिलीज द लेफ्ट माउस बटन ट्वाइस. 2 बार फास्ट में एकदम क्विकली इसको प्रेस और रिलीज करना है, तो दैट आर कॉल्ड द डबल क्लिक. Continued. The third one is right click.
राइट क्लिक में बहुत लोग को कन्फ्यूजन होता है जब हम राइट क्लिक करने बोलते हैं। तो राइट क्लिक मीन्स प्रेस एंड रिलीज द राइट माउस बटन वंस to display the shortcut menu. A shortcut menu is a menu that shows the most frequently used commands for that selected file or folder which the mouse has been right clicked. जब हम किसी को फाइल्स को या फोल्डर्स को ओपन करते हैं या फिर डायरेक्टली आप लोग करते होंगे डेस्कटॉप पे राइट क्लिक रिफ्रेश करने के लिए, मोस्टली रिफ्रेश करने के लिए हम लोग राइट क्लिक का यूज़ करते हैं। राइट क्लिक के थ्रू हम लोग डायरेक्ट न्यू फोल्डर भी कर सकते हैं, सॉर्ट भी कर सकते हैं। तो ये सब जितने भी राइट क्लिक, जब भी हम क्लिक करते हैं राइट क्लिक, तो वहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस चले आते हैं, इसमें सब मेन्यूज़ आ जाते हैं। तो वो शॉर्टकट होते हैं उसके जो भी आइकन पे क्लिक करती है किसी फाइल पे, किसी फोल्डर पे, तो उसके सारे शॉर्टकट्स वो शो करता है जब हम राइट क्लिक करते हैं। तो दिस इज कॉल्ड द राइट माउस बटन। Right click means press and release the right mouse button once a shortcut menu appear. जब हम राइट क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक आप लोग चेक कीजिएगा तो क्या होता है, हमारे ऑप्शंस शॉर्टकट्स मेन्यू आ जाते हैं। एंड द नेक्स्ट वन, पॉइंट एंड ड्रैग मीन्स प्रेस माउस बटन एंड वाइल प्रेसिंग मीन्स आपको लीव नहीं करना, छोड़ना नहीं है। वाइल प्रेसिंग move to another location and then release the mouse button to move or resize a window on the display screen. स्टूडेंट्स आप लोग सारे यहाँ पर ड्राइंग यूज़ किए हो कंप्यूटर पे, तो ड्रॉ करने के लिए आप लोग हमेशा ये करते होगे कि कुछ भी ड्रॉ करना है तो हम लोग लेफ्ट माउस बटन क्या करते हैं, कंटिन्यू प्रेस किए रहते हैं और उसको ड्रैग करते हैं। ड्रैग मीन्स यहाँ से वहाँ जिस भी डायरेक्शन में वो मूव करना हमें पॉइंटर को, तो हम वो उसको प्रेस किए रहते हैं, उसको छोड़ते नहीं है जब हम ड्रॉ करते हैं। तो जिस तरह से आप पेंसिल को पकड़े रहते हैं ना ड्रॉ करने वक्त, या फिर उसको उठाकर ड्रॉ करते हैं, नहीं ना, तो उस तरह से कंटिन्यूसली जब हम वो प्रेस करके ड्रॉ करते हैं पूरा, इट मीन्स उसको ड्रैग करते हैं माउस के पॉइंटर को। तो एक प्लेस से दूसरे अनदर लोकेशन में उसके ड्रैग करके जाते हैं, उसके बाद उसको छोड़ देते हैं। टू मूव और रिसाइज अ विंडो ऑन द डिस्प्ले स्क्रीन। शोज पॉइंट एंड ड्रैग। यहाँ पर हम एक पिक्चर आपको शो करने जा रहे हैं। अ फाइल बीइंग ड्रैग्ड, जैसे कि मान लीजिए आपको एक फ़ाइल को दूसरे जगह ड्रैग करके ले जाना है किसी भी नए लोकेशन में, तो आप उसको कैसे करेंगे, वाइल होल्डिंग माउस बटन। ड्रैग करने का मतलब ही हो गया स्टूडेंट कि आप उसको माउस बटन को प्रेस किए, फिर उसको रिलीज़ नहीं किए, उसको प्रेस किए रहें, होल्ड किए रहें, उसके बाद जब आपका वर्क हो गया तो आप उसको रिलीज़ कर दिए। लुक एट दिस, हियर इज़ वन वर्ड फाइल, आई हैव ओपनड द 2 विंडोज़ and one word file I want to move in the location. The second one, first file is in where is in the document and I want to move in the D drive. Then I have opened the both window. जैसा कि मैंने बताया था ना, विंडोज 7 में हम बहुत सारे ऐप्स के साथ एक साथ काम कर सकते हैं। ओपन उसको करके मल्टीटास्किंग ये करता है। तो हम 2 विंडो ओपन करके अगल बगल उसको रख कर उसके बाद एक को यहाँ से यहाँ डायरेक्ट ट्रैक कर सकते हैं। आपको इतना कॉपी या पेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। लुक एट दिस, ओके। नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट टॉपिक, वर्किंग विथ कीबोर्ड। As you all know student, what is the keyboard? Keyboard is an input device. It is used for the typing and giving instruction to the computer. Input devices keyboard is used to type data and instructions and for some other functions. और भी कुछ फंक्शंस करते हैं ना हम लोग कीबोर्ड से, शॉर्टकट की के यूज़ करते हैं, वहाँ पे बहुत सारे फंक्शंस की भी अवेलेबल रहते हैं। The keys on your keyboard can be divided into several groups based on function. कीबोर्ड तो आप सबने देखा है, स्कूल के कंप्यूटर लैब में भी देखा है और इसके घर पे है वो घर पे भी देखे हैं। तो ये कीबोर्ड में सिर्फ क्या हम टाइप ही करते हैं, अल्फ़ाबेट ही टाइप करते हैं और कोई वर्क नहीं करते हैं।
करते हैं, बहुत सारे वर्क करते हैं कीबोर्ड के साथ, नंबर भी टाइप करते हैं, उसके फंक्शंस का अलग यूज़ करते हैं, शॉर्टकट की का यूज़ करते हैं, कैप्स लॉक का यूज़ करते हैं। तो वन बाई वन आइए देखते हैं। टाइपिंग, तो टाइपिंग करने के लिए कौन क्या क्या यूज़ करेंगे? टेक्स्ट एंड नंबर, अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज़। अल्फ़ान्यूमेरिक keys, these keys include the same letter, number, punctuation also and symbol keys found on a traditional typewriter। जिस तरह से पहले टाइपराइटर जो आता था ठीक उस तरह से ही यहाँ पर अल्फ़ान्यूमेरिक की अवेलेबल है हमारे कीबोर्ड पे। द नेक्स्ट वन इज़ कंट्रोल की। व्हाट इज़ द वर्क ऑफ कंट्रोल की? These keys are used alone or in a combination also with other keys to perform certain actions. The most frequently used control keys are CTRL। तो आपने देखा ही होगा, आपके कीबोर्ड पे लिखा रहता था। तो CTRL का फुल फॉर्म ये होता है कंट्रोल, कंट्रोल, अल्ट एंड द विंडो लोगो की एंड ESC की, एस्केप की। स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने अभी बताया कि कंट्रोल की क्या है, कंट्रोल की यूज़ होता है अलोन भी और कम्बिनेशन में भी। कम्बिनेशन मीन्स कोई अदर की के साथ कम्बिनेशन, जैसे कि कॉपी करने के लिए आप क्या प्रेस करते हैं? कंट्रोल के साथ C प्रेस करते हैं, और कट करना हो तो कंट्रोल के साथ X प्रेस करते हैं। कंट्रोल X इज़ द शॉर्टकट की टू कट द सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट, टेक्स्ट एक्सेट्रा। एंड द पेस्ट करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की है ज़रा बताइए? यस, कंट्रोल प्लस V अल्फ़ाबेट एंड द अल्ट। कम टू द अल्ट। तो अल्ट का अगर हम अल्ट F4 यूज़ करते हैं, F4 फंक्शन की किस लिए यूज़ करते हैं? जनरली आप लोग जानते होंगे शट डाउन करने के लिए। जब हम सारे एप्लीकेशन को क्लोज़ कर दिए, हमारा डेस्कटॉप विंडो आ गया, तो हमको शट डाउन करना तो हम अल्ट F4 प्रेस कर देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं किसी भी एप्लीकेशन पर अगर आप वर्क कर रहे हैं, उस एप्लीकेशन को क्लोज़ करने के लिए भी आप अल्ट F4 का यूज़ कर सकते हैं। अल्ट F4 कम्बिनेशन की का यूज़ कर सकते हैं। द विंडो लोगो एंड एस्केप की, जैसे कि मैं अभी पावर पॉइंट चला रही हूँ, ठीक है, स्लाइड मेरा शो हो रहा है, तो स्लाइड शो को अगर ऑफ़ करना है फुल स्क्रीन से, हमारे प्रेजेंटेशन में आना है एडिटिंग के लिए, तो हम लोग सिंपल सा क्या करते हैं? एस्केप की का यूज़ करते हैं। देयर आर मेनी यूज ऑफ दिस की ऑल्सो, मेनी अदर यूजेस। नाउ कंटिन्यू विथ फंक्शन की। फंक्शन की कौन कौन सा है? आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कीबोर्ड के बारे में। द फंक्शन कीज आर यूज टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क। दे आर लेबल्ड एज F1, F2, F3 एंड सो ऑन up to F12, means F4, F5, F6, F7, F8, F9, F10, F11 and F12. The functionality of these keys differ from program to program. It means different program पे अलग अलग फंक्शन यूज़ होता है। जैसे कि मैं एक सिंपल सा एक्सेल का एग्जांपल लेती हूँ। जब आप इसमें एक्सेल ओपन करेंगे ना, और एक्सेल में किसी भी सेल पे आपका कोई टेक्स्ट टाइप है, तो उसको टेक्स्ट को एडिट करने के लिए आप सिंपल सा F2 प्रेस करेंगे। आपको माउस से डबल क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है, F2 प्रेस करेंगे, ऑटोमेटिक कर्सर वहाँ पर प्रेजेंट हो जाता है। तो अलग अलग डिफरेंट प्रोग्राम के लिए अलग अलग फंक्शंस की का यूज़ होता है। नेक्स्ट वन इज़ नेविगेशन की। नेविगेशन मीन्स समझते हैं ना, नेविगेट करना मीन्स मूव करना। दिस की आर यूज फॉर मूविंग अराउंड इन डॉक्यूमेंट्स और वेब पेजेस एंड एडिटिंग टेक्स्ट ऑल्सो। They include the arrow key, home, end, page up, page down, delete and insert। पता है ना, एरो की का भी हम लोग नेविगेशन के लिए यूज़ करते हैं। एक सीट से ये टेक्स्ट को अगर नेविगेट करना हो, या किसी ऑब्जेक्ट कोई सिलेक्टेड पिक्चर है उसको नेविगेट करना हो, अप डाउन करना हो, तो हम लोग एरो की का यूज़ करते हैं। पेज अप पेज डाउन करना हो तो स्क्रॉल की जगह एरो की का यूज़ कर सकते हैं कीबोर्ड से। डिलीट करते हैं, इंसर्ट करते हैं, दिस ऑल आर कॉल्ड द नेविगेशन की। तो डिलीट में आप सोच रहे हैं कि नेविगेट तो करते नहीं है, तो यहाँ पर सिंपल सा मैंने बताया मूव करना।
डिलीट मीन्स मूव भी तो होता है, वहाँ से वो ऑब्जेक्ट या टेक्स्ट जो भी है वहाँ से वो हट जाता है, ठीक है। इंसर्ट करते कहीं से तो वो वहाँ पर आ जाता है, मीन्स मूवमेंट तो वहाँ चलता है ना, इसलिए ये भी एक नेविगेशन की है। कौन कौन से? एरो की, होम, इंड, पेज अप, पेज डाउन, डिलीट एंड इंसर्ट, ऑल आर द नेविगेशन की। एंड द नेक्स्ट वन इज न्यूमरिक कीपैड। कीबोर्ड में आपने देखा होगा कि हमारा नंबर जो है वो दो जगह अवेलेबल रहता है। एक राइट साइड में जो होता है वो उसको हम लोग न्यूमरिक कीपैड बोलते हैं, और जो अल्फ़ाबेट के साथ अपर में होता है, अल्फ़ाबेट के जस्ट ऊपर, उसको हम लोग अल्फ़ा न्यूमरिक कीबोर्ड में अल्फ़ा न्यूमरिक ऑप्शन में काउंट करते हैं, क्योंकि उसमें नंबर के साथ साथ हमारा सिंबल भी अवेलेबल हम यूज़ करते हैं शिफ्ट की के साथ, ठीक है। तो न्यूमरिक की में हम क्या करते हैं, सिर्फ नंबर ही टाइप करते हैं। द न्यूमरिक कीपैड इज़ हैंडी फॉर एंटरिंग नंबर्स क्विकली। द कीज़ आर ग्रुप्ड टुगेदर इन अ ब्लॉक लाइक अ कन्वेंशनल कैलकुलेटर और एडिंग मशीन। जिस तरह से कैलकुलेटर में हमारा कीज़ अवेलेबल रहता है ना नंबर, उसी तरह से हमारा कीबोर्ड में भी अवेलेबल रहता है राइट साइड में। इस पिक्चर में मैंने आपको दिखाया है, देखिए। टाइप्स ऑफ कीज़ ऑन अ कीबोर्ड। एस्केप की जो है हमारा फर्स्ट अप टॉप की लेफ्ट साइड में, वो किस तरह का की है अभी मैंने बताया आपको, यस, कंट्रोल की। एंड फ्रॉम F1 to F12 it comes in which types? Yes, function key. F1 to F12 are called function key. And next one is right side is the numeric keyboard, and at the center with red line around is called typing keys. It means इसमें अल्फ़ा न्यूमरिक भी हम इसको बोलते हैं, इसमें नंबर भी हैं और अल्फ़ाबेट्स भी हैं। एंड द शिफ्ट, कंट्रोल, ऑल्ट, दिस ऑल आर द कंट्रोल कीज़। एंड द इधर राइट में आ जाए तो नेविगेशन की हमारा इंसर्ट, डिलीट, पेज अप, पेज डाउन, एरो कीज़, दिस ऑल आर द नेविगेशन की। स्टूडेंट कुछ और कीज़ हैं जो इसमें छूट गए, इंडिकेट नहीं है, इसके लिए मैंने यहाँ पे एक और कीबोर्ड का पिक्चर इंसर्ट किया है। लुक एट दिस, इट इज़ इंडिकेटेड थ्रू द कलर इन द रेड कलर rectangle called control key, and purple is called function key, and the yellow one is the typing alphanumeric keys, green one navigation keys, and the gray one is the numeric keypad, and the last one is the indicator lights। पता है ना, जब हम कैप्स लॉक ऑन करते हैं तो हमारा लाइट्स ऑन हो जाता है, नंबर की ऑन ऑफ करते हैं तो उसका लाइट्स ऑन ऑफ होता है। While working with the keyboard, students activate the current menu box by tapping the Alt key। जो भी मेन्यू बॉक्स है वहाँ पे उसको एक्टिवेट करने के लिए हम लोग सिंपल से क्या करेंगे, एक अल्ट की प्रेस कर देंगे तो वो एक्टिवेट हो जाता है। इंटर द अंडरलाइन लेटर ऑफ द मेन्यू ऑप्शन in the active menu to choose that option। okay, arrows key may be used to highlight menu option। जब भी आप कोई विंडो ओपन करेंगे ना तो आप उस पर ये प्रेस करके ये सारे जो है ऑल्ट की को प्रेस करके, एरो की को प्रेस करके चेक कर सकते हैं। स्टूडेंट शॉर्टकट कीज मीन्स अ कीज और अ की कॉम्बिनेशन। मीन here is an example of Alt plus F4 for closing an application can be used to issue commands within a particular application without activating a menu। स्टूडेंट्स Alt की जो भी प्रेजेंट मेन्यूज, जो भी प्रेजेंट मेन्यू बॉक्स वहाँ पे उसको एक्टिवेट करता है। नेक्स्ट जो था वो क्या करता था, वो उसको चूज़ करने में अंडरलाइन करता है कि हम यहाँ पर गए हैं। एंड नेक्स्ट
एरो की को हम लोग हाईलाइट करने के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन पे जाते हैं तो एरो की, अगर ये एडिट ऑप्शन पे तो एरो की को प्रेस करके हम उसके नेक्स्ट ऑप्शन पे चले जाते हैं। इससे हमें पता चलता है कि अभी हम कहाँ पे हैं, किस पे वर्क करना है। शॉर्टकट की तो मैंने अभी बताया है कि किसी भी एप्लीकेशन को क्लोज करने के, जैसे कि हम लोग Alt F4 है जिसका अपना अपना एक शॉर्टकट की है। कॉपी करने के लिए Ctrl+C, पेस्ट करने के लिए Ctrl+V, ये सब हम लोग यूज़ करते हैं। आई थिंक इन टुडे क्लास माउस एंड कीबोर्ड both are cleared. Is it cleared or not, students? How to work with mouse and keyboard? I hope so. If you are getting any problem till now, then you can ask me. No need to hesitate. Okay, students? Students, if you are not willing to learn, no one can help you. Did you know, student? If you are not willing to learn, then no one can help you. But if you are determined to learn, no one can stop you. Remember it. If you are determined to learn, no one can stop you. Thank you, students. Have a nice day. I am Swati Sinha, your computer teacher. Take care.